आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे रिवीजन क्लासेस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। 3 नंबर क्लास है। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा SSC, नॉर्सेड, जिपमर, PGI, MER ओके इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। व्हेन इट कम्स टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट्स। व्हेन इट कम्स टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट्स। There are no shortcuts. Okay, so let's come back to today's first important question. Which of the following is the period from birth to 28 days of life? Neonatal period, early neonatal period, late neonatal period, postnatal period. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए यहाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ओके जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ, ओके फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज अदरवाइज नोन एज क्या बोलेंगे? व्हाट विल से हियर? ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके जिस दिन बच्चा पैदा हुआ इसका मतलब 0 डे। ओके 0 डे। ओके 0 डे इज कॉमनली कॉल्ड ए बर्थ। ओके अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ। ओके अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ओके प्रियदर्शनी, हृषिकेश, संगीता, तिलोत्तमा। ओके दोज आर पुटिंग ये ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। सुनीता बेहरा इज आल्सो गिवन द राइट आंसर। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट? जाह्नवी, ओके यू हैव आल्सो गिवन द राइट आंसर। आंसर विल बी द ए ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the period from birth to 7 days of life? Neonatal period, early neonatal period, late neonatal period, postnatal period. postnatal period तो यहाँ पर क्या होगा? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ मीन बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू 7 days of life, 7 days of life। तो इसको हम क्या बोलेंगे? What will say here? This is also very important question. Okay, very good. Okay, those who are putting that answer very good. Shivram Brahma, Priyadarshani, okay, Anisha, Hrushikesh, Sunita, very good. Very good evening dear Bapi and welcome to today's session. Okay, Jyoti, okay, very good. Tilottama, Sangeeta, all are mentioning B option. Of course that answer is correct one. Early neonatal period. You all have to remember this one. Early neonatal period. Okay. Now we'll come back to next question. Which of the following is the period from 7 days to 28 days of life? 28 days of life. Neonatal period, early neonatal period, late neonatal period. D option में postnatal period. So put your right answer in the chat box. सही आंसर क्या होगा? Okay, means 7 days. Okay, 7 days to 28 days of life. 28 days of life. Okay, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Okay, what will say here? Okay, very good, very good. प्रियदर्शनी, शिवराम, very good here. Okay, हृषिकेश, okay, जाह्नवी, those who are mentioning C option their answer is correct one. Anisha, you have also given the right answer. Sangeeta, very good dear. Okay, all are putting right response. Okay, Jyoti, very good. Sunita, okay, all are giving the right answer. That is the C option. Okay, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें. Don't forget to share with your friend also. Now we'll come back to next question. Which of the following is the average weight of a normal full term newborn? एक न्यूबॉर्न का मीन नॉर्मल फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी का एवरेज वेट कितना होगा? 2.5 kg, 3.9 kg, 3 kg, 2.6 kg। ओके जो क्लासेस चल रहा है दैट इज दिस इज द ओके रिवीजन क्लासेस। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है। जस्ट यू हैव टू रिमाइंड दैट वन। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट योर एमिगडाला। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट योर
hippocampus. Okay, so that you can remember this one. Okay, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दोज हु आर मेंशनिंग ये ऑप्शन, वेरी गुड। ऋषिकेश कुमार, ओके, जाह्नवी, किरण, प्रज्ञा, वेरी गुड। सुनीता, अनिशा, प्रियदर्शनी, शिवराम, तिलोत्तमा, संतोषिनी, very good, all have given the right answer, that is the 2.5 kg. Okay, this is the average weight of a normal full term newborn baby. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Which of the following is the average crown heel length of the term newborn at birth? Term newborn at birth 45 centimeter, 50 centimeter, 60 centimeter, उसके बाद 70 centimeter. ओके, बार्थ में बोला है, बार्थ में क्या बोला है? ओके, न्यूबॉर्न में टर्म न्यूबॉर्न, ओके, टर्म न्यूबॉर्न का पूछा है। ओके, टर्म न्यूबॉर्न का क्या पूछा है आपको? ओके, एवरेज, एवरेज पूछा है। एवरेज कैसा टाइप का एवरेज? क्राउन हील लेंथ पूछा है। ओके, लेंथ पूछा है। सो यू हैव टू गिव योर राइट रेस्पॉन्स, वेरी गुड। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, आंसर विद द बी ऑप्शन। जिन्होंने 50 सेंटीमीटर दिए हैं, देयर आंसर इज 100% करेक्ट, वेरी गुड। शिवराम ब्रह्मा, ओके, प्रियदर्शनी, ओके, ऋषिकेश, किरण कुमार, वेरी गुड, ओके, साईराम, वेरी गुड। दोज हु हैव गिवन 50 सेंटीमीटर, देयर आंसर इज 100% करेक्ट वन। ओके, you all have to remember this. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Which of the following is the average crown heel length of the term newborn at 3 month में बोला है। 3 महीना का बच्चा में एवरेज क्राउन हिल लंब कितना होगा? ओके, क्राउन हिल लेंथ कितना होगा? 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। So put your right answer in the chat box. ओके, बट जो एक्चुअली बुक्स में है, ओके, वन ऑफ द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स बोल के बोला जाता है पीडियाट्रिक्स का। ओके, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, ओके, उसी हिसाब से इट इज क्लियरली मेंशन 50 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस वन। ओके, कोई बात नहीं सर, हम ओके 45 पढ़े हैं, अगर 45 रहेगा ऑप्शन में तो यू हैव टू 45, यहाँ पर 45, 50, 60, 70 दिया है। ओके, तो यू हैव टू पुट योर राइट आंसर, दैट इज द 50 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट? आंसर वुड बी द ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर आपको क्या पूछा है? आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। ये जो आपका बोला था एड बार्थ में बोला है, ये एड बार्थ में बोला है। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज। ये एड बार्थ का बाद हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर 3 महीना का बच्चा के बारे में बोला जाएगा तो 60 सेंटीमीटर होगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी हम। ओके, विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज क्राउन हिल लेंथ ऑफ द टर्म न्यूबॉर्न एट 9 month? ओके, व्हाट इज द क्राउन हिल लेंथ एट 9 month? 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 centimeter, 70 centimeter. So what would be the right answer of this question here? Okay, तो सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? यहाँ पर मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके, मीन एवरी 3 month हिसाब से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसीलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। वेरी गुड। कुमार, शिवराम, ऋषिकेश, प्रियदर्शनी, ओके, ज्योति, संतोषिनी, वेरी गुड, कामिनी, किरण, ओके, ऑल आर गिविंग राइट आंसर। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट रेस्पॉन्स। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज क्राउन हिल लेंथ ऑफ द टर्म न्यूबॉर्न एट 1 year of एज? 1 year of एज में ओके क्राउन हिल लेंथ कितना होगा? ओके, कितना सेंटीमीटर होगा? 75, 50, 60 सेंटीमीटर, उसके बाद 70 सेंटीमीटर। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। संतोषिनी, ज्योति, शिवराम, ऋषिकेश, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर।
Okay, Jannavi, Kiran Kumar, very good. Now we'll come back to next question. Which of the following is the child doubles the birth length by 3 to 4 years, 4 to 5 years, okay, 4 to 4.5 year, 5 to 6 years, 6 to 7 year. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट ऑफ करिए यहाँ. ओके, कौन सा सही आंसर होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पर आपको सही आंसर याद रखना है. ओके, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कौन सा, ओके, मीन कौन सा ईयर में जो बर्थ लेंथ रहता है वो डबल हो जाता है? इसको VVIQ बोल के भी बोल सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन रिमेंबर दिस वन. बी ऑप्शन 4 to 4.5 ईयर्स में. ओके, हमेशा इसको याद रखना है. डबल द बर्थ लेंथ बाय 4 to 5 years, 4.5 years of age. You all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Normally newborn कितना परसेंट बर्थ वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में? 1%, 5%, 10%, 20%. सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए यहाँ. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर. आप सभी को याद रखना है कितना परसेंट लॉस होता है. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इज द 10%. वेरी गुड. दोज हु आर मेंशनिंग 10%, देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके, वेरी गुड. प्रियदर्शनी, संतोषिनी, ओके, हृषिकेश, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Normally newborn gain weight per day for first 3 month of life. ओके, मीन पर डे कितना वेट गेन होता है पहला 3 महीना? 20 to 25 ग्राम, 25 to 30 ग्राम, 35 to 40 ग्राम, 40 to 45 ग्राम. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Everyone has to give the right response here. Okay, always you have to remember. Okay, answer with the 25 to 30 gram. You must have to remember this. This is very very important question. Now we'll come back to next question. Normally the infant gain weight per month is day till 1 year of age. Okay, per month. वो तो हम बोल रहे थे पर डे हो रहा था. पर डे में आपको 25 to 30 ग्राम पर डे होता था. पर डे. ओके, ये था. अभी आपको अभी पूछ रहा है पर मंथ पूछा है आपको. पर मंथ में कितना वेट गेन होता है? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम. सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर हियर. ओके, आंसर विद द 400 ग्राम. वेरी गुड. ओके, दोज हु आर मेंशनिंग बी ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन. Okay, now we'll come back to next question. The infant doubled their birth weight by infant बोला है. Okay, 4 month, 5 month, 6 month, 7 month. कौन सा एज ग्रुप में मीन कौन सा मंथ में इन्फेंट ओके उसका बर्थ वेट को डबल करेगा? सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर आंसर टू द 5 month. ओके, बर्थ वेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. द इन्फेंट ट्रेवल्ड बाय ओके मीन क्या होता है? इन्फेंट का ओके जो बर्थ वेट है वो 3 टाइम्स हो जाता है. कौन सा एज ग्रुप में? 4 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स. इसका जरूर एक तो क्वेश्चन आता है. You always have to remember that answer to be the 1 year of age. Very good. Okay, 1 year of age. जिन्होंने 1 year of age दिए हैं, their answer is correct one. You all have to remember this. Very good. Okay, infant travel their birth weight. Okay, so you must have to remember this one.
ओके 5 मंथ में डबल होता है। उसके बाद ओके ट्रेवल पूछा है, ट्रेवल कितना होगा। ओके सही आंसर पुटअप करिए, पूरी और राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। ट्रेवल बाय 1 year। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्फेंट 4 times they are birthed by 4 years, 1 year, 2 year, 3 year. So what would be the right answer of this question? सर उड़ीसा का एग्जाम एएनएम एग्जाम कब होगा? ओके ओके अभी तो टिल डेट नो सच नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। वंस इट विल कम डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू डियर। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट। ओके ऑलरेडी 1 year में कितना हो गया? ओके 1 year में आप ऑलरेडी 3 times हो गया। ओके उसके बाद 5th मंथ में ओके 5th मंथ में डबल हुआ मीन 2 times। ओके तो अभी आपको पूछा है 4 times। ओके 4 times मीन कौन सा में 4 year, 1 year, 2 year, 3 year। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? दोज यू आर मेंशनिंग ओके सी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। सुप्रभा, शंकर, तुलसी, प्रियदर्शनी, ऋषिकेश, वेरी गुड। ज्योति, संतोषिनी, all are giving the right answer. You must have to remember this one. Okay, Jannavi, you have also given the right answer. Now we'll come back to next question. The infant 5 times they are birthed by 4 year, 1 year, 2 year, 3 years. 5 times बोला है। ओके 5 times कब होगा? कौन सा एज ग्रुप में होगा? ओके इन which एज ग्रुप the infant 5 times they are birthed by? You always have to remember here। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। आंसर would be the D option, that is the 3 years होगा। ओके वेरी गुड संतोषिनी, यू हैव गिवन द राइट आंसर। ओके तो पहला आपको यहाँ याद रखना है 5th मंथ में क्या होता था? डबल होता था। ओके डबल। ओके उसके बाद 1 year में ओके 1 year में आपका कितना हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। ओके ट्रिपल हो रहा है। उसके बाद 2 year में कितना हो रहा है? ओके 4th times हो रहा है। ओके 4th times। उसके बाद 3 years में ओके 3 years में 3 years में ओके कितना हो रहा है? 5 times हो रहा है। ओके 5 times। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। दिस इज वेरी वेरी important question, very important question। okay surely you will get the question this one। उसके बाद the infant 6 times they are birthed by 6 year, 5 year, 7 year, 3 year। so put your right answer in the chat box। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके you all have to remember here that answer would be the okay 5 years of age group में होगा। ओके दैट इज द 6 टाइम होगा। ओके सपोज ओके 2.5 इंटू 6 होगा इज इक्वल टू ओके ऐसे करना है। ओके इंटू 6 कर देना है डिवाइडेड बाय 10 करना है। ओके तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गया तो 15 kg होगा। ओके 5 साल में कितना केजी होना चाहिए? 15 kg होना चाहिए। ओके 5 साल में 15 kg होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का भी पता चल गया कैसे आप एक ठो ओके मीन डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ठो ओके मीन होल नंबर के साथ। 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 15 kg हो गया। ओके यू कैन मल्टीप्लाई दिस वन। गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The infant 7 times they are birthed by 4 years, 5 year, 8 year, 7 year। 7 टाइम बोला है। ओके 7 टाइम अगर birthed रहेगा 2.5 kg। ओके 2.5 kg इंटू 7 बोला है। ओके तो यहाँ पर आपका क्या ऐसे यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। ओके तो यहाँ पर क्या होगा? डिवाइडेड बाय 10। ओके तो यहाँ पर 17.5 kg होगा birthed। ओके कौन सा एज ग्रुप में? आंसर वुड बी द 7 years। वेरी गुड। ओके
किरण, ऋषिकेश, सुप्रभा, प्रियदर्शनी, सुषमा, ज्योति, ओके वेरी गुड, ओके all have given the Sunita, Santoshini, all have given the right answer. You must have to remember this one. ये जो है वेट ये 7 years of एज ग्रुप में होगा, 7 years of एज ग्रुप. You all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. The infant 10 times they are birthed by 4 year, 5 year, 10 year, 7 year. आपको जो क्वेश्चन पूछता है बेसिकली 2 टाइम्स का पूछेगा, 2 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स का पूछ सकता है, 4 टाइम का पूछ सकता है. उसके बाद अगर नहीं पूछता है वेरी रेयरली यू विल गेट द क्वेश्चन. तो कौन सा एज ग्रुप में 10 टाइम्स होगा? ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट आंसर विद द सी ऑप्शन, 10 ईयर्स में होगा. अभी यहाँ पर क्या होगा? इक्वल हो गया. ओके गॉट इट, वेरी गुड. ओके संतोषिनी, ज्योति, ओके उसके बाद किरण, वेरी गुड, प्रियदर्शनी, वेरी गुड, ओके सुनीता, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें. डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड. ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ एज द रिकमेंड लेंथ इज मेजर्ड? रिकमेंड लेंथ, ओके कौन सा एज ग्रुप में रिकमेंड लेंथ को मेजर किया जाता है? अप टू 1 ईयर ऑफ एज, अप टू 2 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स, अप टू 4 ईयर्स. रिकमेंड लेंथ, ओके रिकमेंड लेंथ बोला है. ओके रिकमेंड लेंथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकमेंड लेंथ? ये लेंथ होता है, ओके बच्चा जब ओके लाइंग डाउन रहेगा, ओके ये रिकमेंड लेंथ का मतलब है स्टेच्योर टेकन व्हाइल लाइंग डाउन, व्हाइल लाइंग डाउन. ओके जब बच्चा लाइंग डाउन रहेगा तो उसी टाइम इसको मेजर किया जाता है. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बेसिकली आप लोगों को या इन्फेंट हो गया या चिल्ड्रेन हो गया. यहाँ पर आपको पूछा है ओके कितना साल तक करना चाहिए बोला है. आंसर होगा अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज. ये जो अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज में कौन कौन सा एज ग्रुप का रहेगा? इसमें इन्फेंट्स रहेगा, इन्फेंट्स रहेगा, और चिल्ड्रेन लेस देन, एंड चिल्ड्रेन less than okay 2 years of age, 2 years of age. You all have to remember this one. Okay got it? Now we'll come back to next question. Which of the following tab is used for assessing the crown heel length by placing the child on hard surface in supine position with extended leg? okay एक बच्चा का क्राउन हिल लेंथ को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए बच्चा को हार्ड सरफेस में सुपाइन पोजीशन में ओके लेटा दिया जाएगा. उसका जो पैर है, उसका जो लेग्स है दैट शुड बी एक्सटेंडेड. तो कौन सा मीटर होगा? इन्फांटोमीटर, सिंपल टैब मीटर, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव. सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर. ओके दोज हु हैव नॉट लाइक द वीडियो kindly like the video and don't forget to share with your friend. Okay you must have to remember here answer with the both A and B. okay infantometer भी measure किया जाएगा और you can go through the simple tab meter. very good. ऋषिकेश, सुप्रभा, ज्योति, okay संतोषिनी, all are giving right response. okay उसके बाद ज्योति, किरण कुमार has also given the right response. okay got it? Now we'll come back to next question. BMI remains constant up to the age of death of baby. okay BMI का मतलब क्या है? BMI बॉडी मास इंडेक्स बोल के बोला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स. ओके इसका एक तो फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए. everyone has to know about is BMI. okay BMI जो होता है ओके इसका एक तो फॉर्मूला है. BMI इज इक्वल टू ओके आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी. ओके वेट इन केजी डिवाइडेड बाय ओके हाइट इन मीटर. ओके हाइट इन मीटर स्क्वायर. ओके हाइट इन मीटर होल स्क्वायर. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके गॉट इट? हमेशा याद रखो BMI अगर ग्रेटर देन 25.0 होता है तो समझ जाओ ये ओवरवेट बोल के बोला जाता है. ओवरवेट
ओके गॉट इट। हेल्दी इंडिविजुअल जो रहते हैं, ओके बीएमआई, ओके बीएमआई अगर इन बिटवीन, ओके इज इक्वल टू अगर 18.5 से शुरुआत करके 24.9 है तो समझ जाओ क्या है, हेल्दी रेंज है। इसको बोला जाता है हेल्दी रेंज, ओके ओबेज नहीं, हेल्दी रेंज नाम से जाना जाता है। गॉट इट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो कौन सा एज ग्रुप का होगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड। ओके ज्योति, सुप्रभा, किरण, वेरी गुड, हृषिकेश, संतोषिनी, okay all are giving the right answer. You must have to remember this one. Okay got it. Now we'll come back to next question. Next question हम डिस्कशन करेंगे अभी। If the BMI is more than 30 kg per meter square, it indicate obesity, malnutrition, both A and B. D ऑप्शन में none of the above. Okay B ऑप्शन में none of the above बोला है। Okay BMI अगर BMI is greater than 30 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके सो व्हाट इट विल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? ओके व्हाट इट विल इंडिकेट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को याद रखना है ओबेसिटी। वेरी गुड संतोषिनी, यू हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। सुप्रभा, ओके हृषिकेश, प्रियदर्शनी, ज्योति, किरण, हुताशिनी, ओके वेरी गुड, सुनीता, सुषमा, okay all are giving right response. Okay got it, answer would be the obesity. Now we'll come back to next question. If the BMI is less than 15 kg per meter square, it indicate obesity, malnutrition, both A and B. D option में none of the above. BMI body mass index is less than 15 kg per meter square, 15 kg per meter square, so what it will indicate? Okay क्या indicate करेगा? Sana has also given the right answer in the earlier question. Now it is time to give the right response. Manini Swai, very good. Okay, Santoshini has also given the B option. Sunita, Sushama, Suprabha, Hrushike, Jyoti, Priyadarshini, Kiran, okay, very good. Sana, okay, Hutashini, all are giving right answer. B option. Now we'll come back to next question. At bar, the ratio between the upper and lower segment as measured from the symphysis PV 1.7 to 7:1.0, 1:10, 1:3, 1:8। ओके क्या बोला है? रेशियो बोला है बार्थ में। एट बार्थ में किसका रेशियो? अपर एंड लोअर सेगमेंट का रेशियो, जो कि सिम्फेसिस पीवी में मेजर किया जाएगा। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आंसर वुड बी द ए ऑप्शन, 1.7 to 1.0 रहेगा। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट, वेरी गुड। प्रियदर्शनी, यू हैव गिवन द राइट आंसर। ओके मानिनी, वेरी गुड, यू हैव ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 3 years the ratio between the upper and lower segment as measured from symphysis PVC 1.7:1.0, 1.3:10 or 10, 1:3, 1:8। सो पूरे राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट ऑफ करिए यहाँ। ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके आंसर वुड बी द 1.3210 रहेगा। ओके 1.0 रहेगा। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट, 1.0 होगा, दैट इज नॉट 10 होगा, दैट इज द 1.3 to 1.0 होगा। वेरी गुड। ज्योति, मानिनी, ज्योति श्री भोई, ओके संतोषिनी, हृषिकेश, प्रियदर्शनी, ओके किरण कुमार, ओके ऑल आर गिविंग दैट राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 10 to 12 years of age, the ratio between the upper and lower segment as measured from symphysis PVC 1.7:1.0, 1.3:1.0, उसके बाद 1:3, 1:1। तो यहाँ पर 10 to 12 years of age बोला गया है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? योर आंसर वुड बी द डी ऑप्शन, 1:1 होगा। गॉट इट?
एट 3 month द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर अबाउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीना में बच्चा का एवरेज हेड सर्कमफेरेंस कितना सेंटीमीटर होगा? 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करें यहाँ पर। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज एवरीवन विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर विद 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ये पूछा है आपको, एवरेज हेड सर्कमफेरेंस पूछा है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 6th month द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर्स अबाउट 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। 6 महीना में बच्चा का एवरेज हेड सर्कमफेरेंस कितना सेंटीमीटर होगा? ओके, लेट अस सी हाउ यू आर रेस्पोंडिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। 6 महीना में क्या होगा? बच्चा का जो एवरेज हेड सर्कमफेरेंस है दैट इज द 43 सेंटीमीटर होगा। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? Okay, now we'll come back to next question. At 1 year of age, the average head circumference measures about 40 centimeter, 50 centimeter, 43 centimeter, 45 centimeter. ये हेड सर्कमफेरेंस पूछा है। ओके, हेड सर्कमफेरेंस, ये क्राउन हिल लेंथ नहीं पूछा है आपको। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट क्राउन हिल लेंथ। ओके, ये नहीं पूछा है आपको। क्या पूछा है आपको? हेड सर्कमफेरेंस पूछा है, हेड सर्कमफेरेंस। ओके, सो उसी हिसाब से कॉन्फ्यूज नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, 45 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 2 years of age द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर्स अबाउट 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। 2 years of age में बोला है, 2 years of age में बोला है। आपका आप लोग डिस्कशन कर रहे थे हम 1 year of age में कितना होता था? 1 year of age। ओके, 1 year of age में कितना होता था? डी था ऑप्शन, जिसमें आपको 45 सेंटीमीटर था। ओके, अभी आपको पूछ रहा है 2 years of age में कितना होगा। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर आंसर विद 48 सेंटीमीटर। वेरी गुड, जिन्होंने 48 दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड ज्योति। ओके, ऋषिकेश। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने ओके दिए हैं वेरी गुड 48 दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। एट 7 years of age द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर्स अबाउट 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? 7 years of age में बोला है। तो 7 years of age में क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। 7 साल में आपको 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ओके, एवरेज हेड सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस यू कैन से दैट वन। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 12 years of age द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर अबाउट 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। Okay, what might be the right answer of this question here? Okay, very good. In the earlier question, those who have given the B option, their answer is correct one. Now it is time to give the right answer. 12 years of age में, okay, head circumference कितना सेंटीमीटर होगा? Okay, you must have to remember here. आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। Okay, put up करिए 12 years of age में। Okay, very good. Those who are mentioning, okay. C option their answer is correct one. Very good, very good. Okay, all have given the right answer. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Large size head may be found in, okay, large size head. Okay, large size head जिसको मैक्रोसेफाली भी बोल के ही बोल सकते हो। लार्ज साइज हेड कौन सा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? हाइड्रोसेफालस, रिकेट,
कॉन्डोडिस्ट्रोफी, सिफिलिस। ई ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव। लार्ज साइज हेड, और जिसको मैक्रोसेफाली बोल के भी बोल सकते हो। मैक्रो का मतलब लार्ज, सेफाली का मतलब हेड। लार्ज साइज हेड ओके कौन सा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? हाइड्रोसेफालस, रिकेट, कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी, सिफिलिस। ई ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ। यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आंसर जो होगा ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। बट आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा। ओके, इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट द 4 ऑप्शन because you want to know this question, that's why I have given 5 option. Okay, mean these are the 4 option in which the large size head may be you will found. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Tom shaped head is TOMB, टॉम। टॉम शेप्ड हेड को क्या बोला जाता है? ऑक्सीसेफाली, एनेन्सेफाली, स्काफोसेफाली, प्लाजियोसेफाली। टॉम शेप्ड हेड कौन सा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? तो क्या बोला जाता है? पुट अप करिए सही आंसर। यहाँ पर सही आंसर वुड बी द ऑक्सीसेफाली। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, ऑक्सीसेफाली। ओके, ऑक्सीसेफाली। ओके, इसमें क्या होता है? स्कॉल का डिफॉर्मिटी होता है। ओके, सेकेंडरी टू प्रीमैच्योर सिंटोसिस ऑफ द क्रेनियल सुचर। बेसिकली इसका कॉजेस क्या हो सकता है? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ऑल सुचर। ओके, जितना भी सुचर है, जैसे आप फ्रंटल सुचर हो गया, साइटल सुचर हो गया, ओके जितना सारा सुचर है, ओके इसका अगर प्रीमैच्योर अगर क्लोजर होता है तो ऑक्सीसेफाली या टॉम शेप्ड हेड देखने को मिलेगा। गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड शेप हेड इज ऑक्सीसेफाली, एनेन्सेफाली, स्काफोसेफाली, प्लाजियोसेफाली। बोर्ड शेप हेड कौन सा कंडीशन में देखने को मिलेगा? स्काफोसेफाली बोला है, स्काफोसेफाली। ओके, स्काफोसेफाली का कॉजेस क्या होगा? और इसको डोलिकोसेफाली बोल के भी बोला जाता है। स्काफोसेफाली इज अदरवाइज नोन एज, ओके इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके क्या बोला जाएगा? डोलिकोसेफाली, DOLI डोली, CHOCPHALY। okay, you all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Asymmetrical shaped head is ऑक्सीसेफाली, एनेन्सेफाली, स्काफियोसेफाली, उसके बाद प्लाजियोसेफाली। एसिमेट्रिकल मीन सिमेट्रिकल शेप्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो कौन सा कंडीशन होगा? आंसर वुड बी द डी ऑप्शन, प्लाजियोसेफाली। प्लाजियोसेफाली, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, प्लाजियोसेफाली। ओके, प्लाजियोसेफाली का कॉजेस क्या होगा? ओके 50% चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ओके इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाएगा? फ्लैट हेड सिंड्रोम बोल के बोला जाता है। फ्लैट हेड syndrome, you all have to remember this one. Okay, got it? You must have to remember this one. Now we'll come back to next question. Head circumference is measured by infantometer, ordinary tape, Sakiri tape. Okay, D ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। ओके, हेड का सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर टेप या मेटर में मेजर किया जाएगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर कौन सा होगा? हेड का सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर टेप व्यवहार किया जाएगा? ये जो साकिरी टेप बोल रहे हैं जिन्होंने, ओके बी ऑप्शन जिन्होंने दिए हैं, दियर आंसर इज करेक्ट वन। मानिनी वेरी गुड डियर, प्रियदर्शनी, उसके बाद जोशोवंती वेरी गुड, सुप्रभा हैज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, जोशोवंती वेरी गुड। यहाँ पर जो साकिरी टेप बोल रहे हैं इसको एमिवेसी टेप बोल के भी बोला जाता है।
MUAC टैप बोल के भी बोला जाता है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर विद ऑर्डिनरी टैप होगा। ओके ज्योति, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी न्यूनेट। हेल्दी न्यूनेट का ब्लड प्रेशर कितना रहेगा? 60/40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 80/50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 100/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो सही आंसर क्या होगा? यू ऑल हैव टू रिमेंबर योर, इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन 60/40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी द ब्लड प्रेशर, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी न्यूनेट। यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूनेट which falls after birth but become normal within 4 to 8 hours is 36.5 degree centigrade to 37.5 degree centigrade, 37 degree to 38 degree centigrade, 40 to 42 degree centigrade, 35 to 36 degree centigrade. So put your right response in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए। ओके जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। ओके तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। ओके आंसर वुड बी द ये ऑप्शन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा याद रखो C इज इक्वल टू ओके F-32 इंटू 5/9। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, you all have to remember this one. formula for Celsius to Fahrenheit, you must have to remember this one. okay 5/9 या 9/5 कौन सा होगा? सही आंसर पुट अप करिए। Okay, what would be the right answer? Okay, 5/9, this is the right answer. Okay, this is the formula. Okay, आपको यहाँ पर सेल्सियस में दिया है। ओके तो आपको यहाँ लिख देना है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 करना है। ओके इसको कन्वर्ट करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके 36.5 इज इक्वल टू F-32 इंटू ओके टेप को थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ बाय 9 कर सकते हो इसी हिसाब से। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके 1 विल मल्टीप्लाइड विद द F-32 इंटू 5 इज इक्वल टू 36.5 इंटू 9 होगा। ओके इसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जरूर इसको याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके ऑलवेज यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? F-32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू 36.5 इंटू ओके 5/9, यहाँ पर 5 होगा ओनली। ओके यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, तो इसी हिसाब से आपको अभी कैलकुलेशन करना है। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूनेट स्पेंड अबाउट X% ऑफ द टाइम इन स्लीपिंग। कितना % टाइम स्पेंड करता है स्लीपिंग में न्यूनेट? 70%, 80%, 90%, 95%। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर। ओके 80% टाइम स्पेंड करता है स्लीपिंग में। ओके न्यूनेट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूनेट स्पेंड अबाउट X आवर ऑफ द टाइम इन स्लीपिंग। कितना आवर स्पेंड करता है 24 आवर से? कितना आवर स्पेंड करता है ओके स्लीपिंग में? 15 आवर, 20 आवर, 25 आवर, 30 आवर्स। कितना आवर स्पेंड करता है? ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर इसका होगा 20 आवर्स। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 आवर्स। The anterior fontanelle normally closes by। anterior fontanelle is also known as ब्रैगमा बोल के बोला जाता है। ब्रैगमा
ओके, कितना वीक्स या कितना महीना में क्लोज होता है। ओके, ये ऑप्शन में 6 to 8 वीक्स, उसके बाद बोला है 12 to 18 मंथ, उसके बाद 10 to 12 मंथ, 8 to 10 मंथ। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके, एंटीरियर फॉन्टानेल नॉर्मली क्लोजेस बाय, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सही आंसर पुट अप करिए, कितना आवर होगा। ओके, एंटीरियर फॉन्टानेल ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर आंसर विद 12 to 18 मंथ, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। जशोवंती मानिनी, ओके, जशोवंती सुषमा, ओके, ज्योति, सुप्रभा, हुतासिनी, मानिनी, ओके, प्रियदर्शनी, किरण कुमार, वेरी गुड, साना, ओके, वेरी गुड, सुषमा, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्टीरियर फॉन्टानेल इज ऑल्सो नोन है लामड़ा बोल के बोला जाता है, लामड़ा, और इसको लामबर्ड सुचर, ओके, लामड़ा नॉर्मली क्लोजेस बाय 6 to 8 वीक, 12 to 18 मंथ, 10 to 12 मंथ, उसके बाद 8 to 10 मंथ। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, ओके, ऑफ दिस क्वेश्चन। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, आप सभी को याद रखना है। ओके, यू ऑल हैव टू गिव द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए। ओके, आंसर विल बी द 6 to 8 वीक्स होगा। ओके, गॉट इट, वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब एंड ऑफ द सेशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इम्पोर्टेंट सेशन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।